Assalamu alaikum. Welcome to Internet of Things, and it's about week lecture 12. Now let's start this lecture. Today's topic is actually HTTP protocol. It's about hypertext transfer protocol and its web server libraries and the simple detail discussion about HTTP server as well. So let's start this. The Hypertext Transfer Protocol is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information systems that allow users to communicate data on the World Wide Web. So it's simple. HTTP actually allows you to communicate with any other system in any place, in any other place where it can you can communicate them using internet. You can send informations, you can send any data to him using HTTP protocol. HTTP was first invented alongside HTML to create the first interactive text-based web browser, the original World Wide Web. Today, the protocol remains one of the primary means of using the internet. So, basic purpose of this protocol is actually just send text-based information. HTML document is identified by a uniform resource locator. As you all guys know that URL, you are all familiar from this uniform resource locator. And there next is an example that the structure of a URL. Let me explain. As you can see that the first is HTTP, then it's colon, then double forward slashes, and after that let's say any example.com or let's say www.google.com. Then after that if you see a number like this, then it is a port number. Then after that it's a path and the file name. So first here is the scheme, is a protocol which you are going to use to communicate. And now these days we know that we are using HTTPS. S is for the security purpose, hypertext transfer protocol. And the next thing is the domain name, the host actually, and you are requesting this page by sending this from your browser to the server. And the unique process is identified through a port number actually, so that's why we are using here a port number, just like 8080. 80 is for actually for the hypertext transfer protocol HTTP. And the next thing is the path, where the specified page you want to desire to get. So अगर हम देखें बेसिकली तो HTTP में सेट ऑफ हेड HTTP जब कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो जस्ट ऐसे ही नहीं कि मतलब सेंड हो जाती है, उसमें साथ बहुत से हेडर्स जाते हैं. हमने जब नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ा था तो हमने उसमें डिटेल में ये पढ़ा था कि हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, टू चेक दैट, टू इंश्योर, ठीक है, कि नेक्स्ट डिवाइस जो है वो भी रिस्पॉन्ड दे रही कि नहीं दे रही. तो हेडर्स दैट कैन बी यूज टू अटैच मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेंट ओवर द नेटवर्क. मतलब हेडर्स सेंड किए जाते हैं. हेडर्स का मेन काम क्या है कि मेंटेन इन्फॉर्मेशन को करना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस को. क्लाइंट क्या है, रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्स सेंड करता है वापस. यहाँ एक जो सेंडर है और रिसीवर है. सेंडर जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो रिसीवर है जो सेंडर जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो उसके बाद रिसीवर है वो उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस सेंड बैक करेगा. तो HTTP बेसिकली वर्क ऑन द टॉप ऑफ द IP, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो HTTP बेसिकली IP पर वर्क करता है. हम जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अगर मैं बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन दूं तो IP की बात की जाए तो IP सेम एक हाईवे की तरह है, जिसके ऊपर डिफरेंट गाड़ियाँ जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचती हैं, यानी कि कनेक्शन क्या है, हाईवे है बेसिकली.
तो हाईवे पर गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही होती हैं, गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो वो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि उनको एक नाम दे दूँ कि ये टीसीपी है, टीसीपी का एक पैकेट जो है वो जा रहा है, और विद इन दिस गाड़ी के अंदर डिफरेंट हमारे पास लेट्स से पैकेट्स हैं जो कि HTTP कहलाते हैं. सो इन दिस प्रोटोकॉल मशीन्स आर एड्रेस्ड यूजिंग एन IP एड्रेस. ठीक है, हमें पता है कि जो IP प्रोटोकॉल्स जो मशीन्स हैं, हर यूनिक जो मशीन है उसको एक यूनिक ID दिया जाता है, हम उसका IP कह देते हैं, एक एड्रेस होता है. ठीक है, 32 बिट, विच मेक्स इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स. ठीक है, जो मतलब उन्हें हेल्प आउट करता है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया तक कनेक्शन स्टेब्लिश करने का. ठीक है, और डिफरेंट स्कीम यूज़ कर सकते हैं. सिंपल जो मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है वो इथरनेट टाइप है. ठीक है, और दैट यूज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस, जो कि मैक एड्रेसेस को भी यूज़ करती है. तो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन इन HTTP इज़ डन ओवर अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, HTTP में जो कम्युनिकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, HTTP की, वो हम यूज़ करते हैं किसको, TCP में. अगर एक्चुअली ओवरऑल जितना भी इस वक्त इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होकर हो रही है ना, वो TCP पर ही हो रही है. हाँ, एक्सेप्ट के लाइव स्ट्रीम्स जो होती हैं ना, लाइव स्ट्रीम हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे UDP यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने डाटा को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डाटा को सेंड करते जाते हो. ठीक है, रिसीवर को रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती लाइव स्ट्रीम्स में. वहाँ पे UDP यूज़ किया जाता है. लेकिन जहाँ पे आपको कंफर्म करना हो कि वाकई डाटा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, और अगर नहीं पहुँचा तो दोबारा सेंड करूँ, तो वहाँ पे यह क्या यूज़ करते हैं, आप TCP यूज़ करते हैं. ठीक है, the TCP connection makes sure that the packets are not lost and are received in the same order in which they were sent. ओके, उसमें होता क्या है फिर, जब TCP हम यूज़ कर रहे हैं तो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स पे हमारे IP एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, और विद उनका साथ साथ पोर्ट नंबर्स भी होते हैं स्पेसिफाइड करने के लिए. ठीक है, कि कौन से प्रोसेस को कौन सा डाटा चाहिए. द असाइंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP इज़ 80. ठीक है, HTTP के लिए जो कॉमन पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है वो होता है 80, और इसके अलावा हम अल्टरनेटिव 8080 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम कर रहे होते हैं कई बार कॉमनली यूज़. अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू दिखाया गया है कि होता क्या है कि लेट से क्लाइंट आया, क्लाइंट ने डाटा सेंड किया उसने. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट समझ लें कि क्या जो सर्वर है वो बिजी तो नहीं है, चेक करने के लिए सर्वर ने उसे वापस एक एक्नॉलेजमेंट सेंड की है. अब वो जो है वो गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. ठीक है, HTML की है, CSS की है, जो भी है उसमें गेट रिक्वेस्ट सेंड की है, फिर कुछ टाइम लगेगा और सर्वर उसको जो है उसका HTML रिस्पॉन्स या CSS रिस्पॉन्स जो है वापस उसे सेंड कर देता है, और इस तरह ये कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाता है. और इसमें मिनिमम टाइम जो यहाँ पे दिखाया गया है 172 मिली सेकेंड्स है. ठीक है, द क्लाइंट सेंड द सिंक पैकेट टू द सर्वर, वेब सर्वर रिस्पॉन्ड विद द सिंक एक्ट एक्नॉलेजमेंट पैकेट, क्लाइंट अगेन सेंड्स मतलब ये प्रॉपर बताया गया कि देखें 3-वे हैंडशेक किया जाता है TCP के अंदर. ठीक है, 3-वे हैंडशेक क्या है कि कम से कम 3 पैकेट्स यूज़ होने हैं, या कम से कम 3 ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो परफॉर्म होनी है. मिसाल के तौर पे फर्स्ट जो है उसने सेंड करना है क्लाइंट ने, ये चेक करने के लिए कि जो यूज़र है, जो सर्वर है वो बिज़ी तो नहीं है. सर्वर ने फिर उस पर रिस्पॉन्ड देना है कि नहीं भाई मैं बिज़ी नहीं हूँ या बिज़ी हूँ. तो अगर वो बिज़ी नहीं है तो फिर उसके बाद क्लाइंट सेंड करता है अपना पैकेट, तो फिर जाके पैकेट पहुँचता है वहाँ पे सर्वर तक. तो ये 3-वे हैंडशेक है कम से कम, यानी कि एक पैकेट का वहाँ तक पहुँचने के लिए 3-वे हैंडशेक होता है यूज़. अच्छा जी, क्लाइंट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर आस्किंग फॉर रिसोर्स. ठीक है, ये तो ये प्रॉपर इसमें मैंने बता दिया है. नेक्स्ट हम चलते हैं, HTTP डेटा राइट्स अबव द TCP प्रोटोकॉल. ठीक है, अच्छा TCP जो है वो IP पे चलता है, और TCP जो HTTP है वो TCP पे चलता है. तो विच गारंटी द रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी एंड ब्रेक डाउन लार्ज डाटा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इनटू नेटवर्क मैनेजेबल चंक्स. ठीक है, मतलब बेसिकली छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है TCP डाटा को. TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल विच मीन्स when a client starts a dialogue with a server, the TCP protocol will open a connection over which the HTTP data will be reliable transferred. मतलब हमें पता है कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि सेंड करेगा डाटा तो उसका रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा, मतलब कि पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तब तक वो ये इंश्योर रखेगा कि अगर नहीं पहुंचा तो वो दोबारा सेंड करे, और अगर पहुंच गया तो इसकी एक्नॉलेजमेंट भी वो क्लाइंट को देगा कि जी भाई आपका डाटा जो है प्रॉपरली पहुंच गया है. इंक्रिप्शन, अच्छा इसमें जो इंक्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जो इंक्रिप्शन है, लेट्स से एक डाटा जो है वन एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है. ठीक है, सारी बात है दोनों तरफ इंक्रिप्ट
और डिक्रिप्शन जो हो रही है वो हो रही होती है। तो इंक्रिप्शन किसके थ्रू की जाती है? सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू, SSL जिसे हम कहते हैं, या TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो होती है, ठीक है। ये क्या करती है? इंक्रिप्शन को परफॉर्म करती है। व्हेन दिस इज़ डन, जब इंक्रिप्शन हो जाती है, द प्रोटोकॉल इज़ नॉर्मली नेम्ड अच्छा HTTP एंड द कम्युनिकेशन इज़ परफॉर्म ऑन सेपरेट पोर्ट, नॉर्मली 443, और जो है ये वाली पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं 443। नेक्स्ट हम चलते हैं द इंटरनेट आर्किटेक्चर फॉर HTTP। इसका जो डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ कि कैसे वर्किंग हो रही है। देखें, सबसे ऊपर जो है जहाँ पे यूज़र डील कर रहा है वो URL से डील कर रहा होता है, वो तो या तो HTTP होता है या HTTPS के थ्रू होता है, ठीक है। वो जब सेंड करता है तो TCP क्या कर रहा है, उसे 80/443 पोर्ट जो है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, उनके थ्रू वो चेक करता है। इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करते हुए IP एड्रेसेस के थ्रू, एक IP एड्रेस से दूसरे IP एड्रेस, फिर नीचे मज़ीद डिवाइड कर दें से मज़ीद, तो वो फिर लोकल एरिया में चले जाती हैं, उसके जहाँ तक डाटा जाना होता है वहाँ पे वो जो है डिवाइस को पहचानते हैं MAC एड्रेस के थ्रू। फिर उसके बाद ये जो डाटा है बेसिकली केबल्स या रेडियो की फॉर्म में जो है उस फॉर्मेट जो इस फॉर्म में ट्रैवल हो रहा होता है, ठीक है। तो HTTP इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। मतलब बेसिकली HTTP ने ही आपको एक समझ लें एक वे दिया कि आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्रिएट कर सको, ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है? ये क्या है? बेसिकली ये कहता है कि आप जो है ना वेब पब्लिशिंग के थ्रू ना लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। मतलब सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट से दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा बैठा है, वो वहाँ से सर्विस, कोई भी सर्विस जो है ऑनलाइन जो है किसी दूसरे बंदे को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सर्विस से मुराद ये है कि लेट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, वो कुछ भी है, तो वो नेट पे जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव हो जाती है, ठीक है। या लेट से वो इंटरनेट के थ्रू ही कोई हेल्प कॉल आउट कर लेता है एंड सो ऑन। तो HTTP आर कॉल्ड वेब सर्विसेज, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट मैनर फॉर पब्लिशिंग वेब सर्विसेज इज कॉल्ड सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। SOAP भी कहते हैं ऐसे, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। वेब सर्विसेज को पब्लिश करना, ये वो सारा काम जो है बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब देखें, लेकिन चलें, ये तो हमने IoT इसको HTTP को डिटेल में डिस्कस कर लिया। लास्ट लेक्चर में जो वीक 11 में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक कोडिंग एग्जांपल भी दी थी जिसके अंदर हम HTTP को यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर सीन ये है कि क्या HTTP जो है वो IoT के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो आंसर जो है वो है कि ये HTTP जो है ना बेसिकली IoT के लिए सूटेबल नहीं है। कैसे? क्योंकि कुछ वजूहत हैं इसकी। सबसे जो है नंबर 1-to-1 कम्युनिकेशन है इसमें HTTP में। HTTP इज़ डिज़ाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सिस्टम्स ओनली एट अ टाइम। मतलब होता है क्या कि आप क्लाइंट क्या है कि रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर क्या है उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये 1-to-many कम्युनिकेशन नहीं है कि एक क्लाइंट एट अ टाइम 50 सर्वर्स को सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट, ऐसा सीन नहीं है, या 50 कंप्यूटर्स को सेंड कर रहा है, नो। यहाँ पे मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक अप्रोच है या बेसिक जो आपको नज़र आ रहा है कि आप एट अ टाइम एक ही रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, यानी कि एट अ टाइम आप एक ही कंप्यूटर से काम आप कर रहे हो। While the works fine for requesting resource from the web as a user, it doesn't fulfill the need of IoT setup. In most of the IoT applications at large industry and manufacture units, there are large number of sensors which are generating data at the same time and want to push this ahead to the server at the same time as well. मतलब हर जो चीज़ है वो आपको पता है इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है IoT के अंदर, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर की तरफ जा रही है, और एक चीज़ नहीं है, हर बंदा यानी कि सर्वर की तरफ सेंड कर रहा है। तो यहाँ तो फिर सर्वर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, जो कि हमें इंटरनेट की दुनिया में तो है ऐसा। हैंस लेकिन जो HTTP की अप्रोच है ना वो IoT के लिए बेस्ट नहीं है। तो हैंस HTTP डज नॉट फुलफिल द नीड फॉर 1-to-many कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसर एंड द सर्वर, ठीक है। 1-to-many कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी अप्रोच नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हो तो रही है 1-to-many कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो HTTP का सिंपल जो हमने अभी जो प्रोटोकॉल की हमने डिटेल पढ़ी है उसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। HTTP is a unidirectional in the sense that only one system can send a message to the other at any point in time, ठीक है। This is because it is based on the request response model where the client has to explicitly
रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स एंड देन सर्वर रिस्पॉन्ड विद दैम। मतलब सीन ये है सिंपल कि यहाँ पर जो अभी हमने इंफॉर्मेशन जो डिटेल में डिस्कस की है कि जो ये है ये यूनिडायरेक्शनल को फोकस अप्रोच ज़्यादा यानी कि फोकस कर रही है, जो कि IoT के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि IoT कहता है सिमल्टेनियसली मैनी डायरेक्शंस की में सेंड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देखिए, आफ्टर रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स टू द सर्वर द क्लाइंट हैज़ टू वेट फॉर द सर्वर टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, सिंक्रोनस ये कहता है कि देखें ए सिंक्रोनस होती तो फिर तो बात ही अलग थी। अभी हम पढ़ चुके हैं ये सिंक्रोनस है, सिंक होगा कि मतलब जब तक रिस्पॉन्ड नहीं आता वो वेट करता है। ठीक है, TCP को फॉलो कर रहा है ना, जब तक मतलब वेट करेगा, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो वेट करेगा जब तक अगर डाटा नहीं सेंड हुआ तो वेट करेगा। ठीक है, दिस ब्लॉक्स सम सिस्टम रिसोर्स लाइक थ्रेड्स, CPU साइकिल्स, etc ऑन बोथ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर साइड। तो ये हमारा जो IoT का बेस्ड हमारा जो वर्किंग है ना उसको बहुत स्लो डाउन कर देगी चीज़, कि मतलब मैं अभी सेंड कर रहा हूँ कमांड और अगर हो सकता है सर्वर बिजी हो, मेरा जो है मेरा मैसेज नहीं पहुँचा वहाँ तक, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाईजान अब कब होगा। वो सर्वर भी वेट कर रहा है कि जब तक मेरी प्रोसेस नहीं हो सकती मैं अगला काम डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहा। ठीक है, तो सिंक्रोनस अप्रोच जो है वो भी हमारे लिए IoT के लिए यहाँ पर बेहतर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉट डिज़ाइन फॉर इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, HTTP बेसिकली यहाँ पे इवेंट बेस्ड नहीं है। कैसे? आपको पता है IoT में क्या होगा, लेट्स से हमारे पास कोई सेंसर है। ठीक है, उसने मेजर करना है कोई वेरिएबल चीज़ जैसा कि टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएबल चीज़ अब देखें ना, वो टेम्परेचर जो है वो तो हर वक्त चेंज होती जा रही है खुद, तो उसने खुद बहुत डिटेक्ट करना है सेंसर ने, और फिर सेंड भी करना है बैक कि भाई अब इतना हो गया, अब इतना हो गया टेम्परेचर। ठीक है, जबकि HTTP में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, वो इवेंट ड्रिवन नहीं है कम्युनिकेशन HTTP में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो HTTP सारी बात है, इसमें भी हमें यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन नहीं है HTTP में। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी इसकी देखें, HTTP कनेक्शन जो है यूटिलाइज हाई सिस्टम रिसोर्स स्पेशली IO थ्रेड्स। ठीक है, इस मतलब ये है कि ये सिस्टम रिसोर्स जो है वो हाई यूटिलाइज करता है। ठीक है, फॉर एवरी HTTP कनेक्शन द क्लाइंट सर्वर हैज़ टू ओपन एन अंडरलाइंग परसिस्टेंट TCP कनेक्शन एज वेल। इसमें TCP कनेक्शन, जबकि IoT के अंदर आप देखें तो वहाँ पे अगर जितना ज़्यादा डाटा हो गया तो फिर सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा बहुत, और अगर सिस्टम पे लोड हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर HTTP वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो दैट्स इट, इंशाल्लाह हम आपसे अच्छा यहाँ पर सॉरी एक नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि लेट से हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे पास 4 चीज़ें हैं, सेंसर है, एक्वेटर है, और कंट्रोलर है, और कैमरा है। ठीक है, सेंसर का सेंस करने के लिए टेम्परेचर वगैरह इस तरह की चीज़ों को, एक्वेटर का काम क्या है, वो डिवाइसेस को मूव करवा सकेगा, या सेंसर को या कैमरे को वो मूव करवाएगा। ठीक है, 0 से 180 डिग्री तक। कंट्रोलर जो है वो इन दोनों को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और कैमरा है जो है वो जस्ट फ़ोटो को कैप्चर करेगा। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमने ना, अब इसकी हमने कोडिंग लिखनी है। ठीक है, आर्डिनो के ऊपर, और इसको हमने सम अप करना है, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर हैं जो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उन प्रोटोकॉल्स को इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम सम अप कर देंगे, आप इसके ऊपर वर्किंग करना थोड़ी। ठीक है, तो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इसके जो है कंप्लीट कोड के साथ आपको वर्किंग इसकी दिखाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा कि HTTP क्या है। ठीक है, उसके प्रोटोकॉल के बारे में, और कैसे वो वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है वो पढ़ा हमने, कौन सी पोर्ट्स वो यूज़ करता है। ठीक है, और सोप क्या होता है, कि बेसिकली HTTP जो है वेब सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ये HTTP के लिए क्यों सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, इसमें यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, इवेंट ड्रिवन नहीं है। ठीक है, स्केलेबिलिटी भी जो है वो इसकी बहुत यूटिलाइज बहुत ज़्यादा हाई करता है, जो तो जितनी ज़्यादा हाई करेगा उतने मुश्किल हो जाएगा IoT में डिवाइस को कंट्रोल करना। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग।